So in this class, in the last class, we have seen the Nehru 14 points. Just quick revision of the Nehru 14 points. The Nehru asked for India should be given the status of a dominion. And second point was there should be a federal form of government with residuary powers vested with the center. The second point is changed in the, remember the India should be given the status of a dominion. What is the second point? There should be a federal form of government with residuary powers vested at the center. That is the union government, that is parliament. Because India should be had given the parliamentary form of government headed with the prime minister and plus 6 ministers appointed by the governor general. उसके बाद में क्या है? There should be a bicameral legislature. उसके बाद में system of weight. There should be no separate electorate for any community. उसके बाद में there should system of weights of age of minorities was as bad as that of separate electorate. There should be no difference between the citizens of the country. Second, reservation of Muslim seats could be possible where Muslim population was at least 10%, but this was to be in strict proportion to the size of the community. उसके बाद में क्या बोला? Muslim should enjoy the 1/4 representation in the central legislature. Sindh should be separated from Bombay only if the committee certifies that it was financially self-sufficient. उसके बाद में the NWFP should be given full provincial status. NWFP is Northwestern Frontier Province. इसके बाद में a new Canary speaking province, Carnatic, should be established in South India, that is today's Karnataka. उसके बाद में क्या है? Hindi should be made the official language of the union. So these were the 12 points. So in respect to these 12 points, Jinnah submitted its 14 points, which we are going to see today. Now let us see the 14 points of Jinnah. What are the 14 points of Jinnah? A positive aspect of Nehru report was that it resulted in the divided Muslim group. The meetings of the Council of All India Muslim League on March 28, 1929, members of both Shafi League and the Jinnah League. Now when you say the Muslim League, there was not one Muslim League. There was two branches of that league. One was the Shafi League and one was the Jinnah League. It participated. उसमें क्या है? Quaid-e-Azam termed the Nehru report as Hindu document. माने वही था Quaid-e-Azam here. The Muhammad Ali Jinnah was called as Quaid-e-Azam, but considered simply rejecting the report as insufficient. So what was the excuse given by the Jinnah to terminate the report? What is the excuse given by the Jinnah to terminate the report? It simply termed as report as insufficient. Which report we are talking about? Which report we are talking about? Nehru's report. उसके बाद में क्या है? What is the next point? He decided to give an alternative Muslim agenda. It was a meeting in the Quaid-e-Azam presented his famous 14 points. These were as follows. Now let us see the 14 points of Muhammad Ali Jinnah. What does he say? What is the first point? The form of the future constitution should be federal with residuary powers vested in the provinces. What does the Nehru report said? The residuary powers should vest in the. What does the Nehru report said? India should be given a status dominion. There should be federal form of government with the residuary powers vested in the center. What is Jinnah 14 point said? Residuary powers vested in the provinces, माने states. उसके बाद में क्या दिखा रहा? A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. माने जितने भी states है, the autonomy माने आज का जो इंडिया है, एक autonomy है states के लिए with exceptions. Second क्या है? All legislatures in the country and all other elected bodies
shall be constituted on definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province minority or even equality. माने क्या बता रहा हूं मैं, all legislature in the country, all legislatures माने parliament और state assembly में जितने भी assemblies बने हुए हैं shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minority. माने स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में कितना परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल आज का आप देखिए तो ऑल इंडिया में कितना परसेंटेज है मुसलमानों का, 14% है, तो 14% से मुसलमानों को जानो। अगर आप तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट में मुसलमान कितने हैं, 10% है, तो 10% should go to the Muslims. अगर यूपी में मुसलमान कितने हैं, 20% है, तो 20% should go to Muslims. So effective representation of minorities in every province, without reducing the majority in any province to even a minority or even equality. माने जितना परसेंटेज है उतना ही देना, उससे ज्यादा ही देना, बट उतना भी कम से कम उतना तो देना, उसके बाद उसके ऊपर देना मेजॉरिटी में। नेक्स्ट क्या दिया रहा है, इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3. 1/3 माने व्हाट इज 1/3? 33%. What is the Nehru report said? Muslim should be given 1/4 of the central legislature. Nehru said Muslim should be given 1/4 representation. But what is the Jinnah said? Muslim representation shall be not less than 1/3. माने 25%. Nehru said 33%. उसके बाद क्या है? Representation of communal groups shall continue by means of separate electorate. Jinnah wanted the separate electorates to be continued, which started in 1909. The Nehru report said we are not going to create any separate electorates. What are separate electorates? Separate electorates क्या था? अगर एक एरिया में, if any area where are majority are Muslims, so only Muslim candidate can stand and only Muslim candidates can vote. That was the separate electorate. इसका मतलब क्या है? Representation of communal groups shall continue to by lead of separate electorates was at present, provided it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in the favor of joint electorate. अब इंडिया में कौन सा electorate चलता? इंडिया में आज अगर ये एरिया है, क्या एक फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया? दबीपुरा है। अब दबीपुरे में मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम। क्या एक नॉन मुस्लिम भी रह सकता? तो नॉन मुस्लिम करके क्या बोलते हैं, मुस्लिम वोट डाल सकते हैं उसको। और एक हिंदू एरिया है, कंप्लीटली नॉन मुस्लिम एरिया है, क्या एक मुसलमान ठहर सकता उधर? क्या पूरे नॉन मुस्लिम वोट डाल सकते हैं? So we follow a system of joint electorate. Today we follow a system of joint electorate. माने कोई भी ठहर सकता, कोई भी वोट डाल सकता है। There is no specific separate electorate. Any रिप्रेजेंटेशन कम्युनल ग्रुप भी होना है। अगर वो एरिया में, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोले हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होना है, जॉइंट इलेक्टोरेट होना है, तो इट शैल बी अप्लाइड। उसके बाद में एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन माइट दैट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन द पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। देखिए इंडिया में जब आप देखिए तो मुस्लिम मेजॉरिटी किधर किधर थी वो टाइम पे? एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट बी एट एनी टाइम बी नेसेसरी इन एनी वे, नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन द पंजाब। पंजाब में कौन है? मुसलमान ज्यादा थे। उसके बाद में बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे, जो ईस्ट बंगाल बना। उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस माने आज का अफगानिस्तान का पार्ट और पाकिस्तान एंड बॉर्डर ऑफ पंजाब रीजन। तो ये एरिया पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर कल के दिन कुछ भी चेंजेस हुआ तो मुस्लिम पॉपुलेशन चेंज नहीं होना, ठीक है? एडिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन माइट नॉट। उसके बाद में 7 पॉइंट क्या है? फुल रिलीजियस लिबर्टी ऑफ आज का प्रीएम्बल क्या है? प्लीज रीड द टुडेस प्रीएम्बल। प्लीज रीड टुडेस प्रीएम्बल। We the people of India solemnly
लिबर्टी के क्या क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो पूर्ण अवेलेबल है ये, चाहे चाहे आप मेजॉरिटी रहने दो चाहे माइनॉरिटी रहने दो, अवेलेबल है। और आर्टिकल नंबर 28 क्या है? रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ, सबको माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल सेफगार्ड दिए हुए हैं। So at that point also he has asked the same thing, full religious liberty, liberty of belief, worship and faith, observation and propaganda। ये सबसे डेंजर है। प्रोपेगेंडा क्या है? व्हाट इज प्रोपेगेंडा? मींस अगर आपको, अगर आज क्या हो रहा, प्रोपेगेंडा माने इट इज लाइक, इसमें झूठ नहीं बोल सकते आप, इसमें ये बोल सकते कि भाई आप अपने तरफ से जो बोले वो आप अपने पार्ट, अगर कोई इलेक्शन हो रहा तो इलेक्शन में आप कौन सा भी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, यू कैन यूज एनी स्टेटमेंट, यू कैन यूज एनीथिंग इन द इलेक्शन टू विन द इलेक्शन, दैट इज द प्रोपेगेंडा। आप ऑल टुगेदर झूठ नहीं बोल सकते, बट यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। अगर आप क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एडवोकेट बोले, एडवोकेट का मतलब क्या समझते लोग? एडवोकेट का मतलब क्या समझते? झूठ बोलना समझते। झूठ नहीं बोल के भी, अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको मालूम है एंड इट इज प्रूव दैट कि ही इज अ मर्डरर, ही इज अ मर्डरर एंड ही इज अ कल्प्रिट, लेकिन आप फिर भी उन्हें क्या है, वकील रहता, उसको क्यों रहता वकील? अगर सबको मालूम है कि भाई उसके खिलाफ भी आने वाला है, फिर भी वकील क्यों रखते हैं उसको? कि भाई मिनिमम से मिनिमम सजा देना है। तो ये क्या है, प्रोपेगेंडा माने आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन झूठ की बात तो नहीं होती इधर, बट यू कैन पुट एनी स्टेटमेंट। आज भी क्या करते हैं, आज भी वो टाइम पे रिजेक्ट कर दिए, आज भी इलेक्शन में क्या हो रहा, ओपन झूठ हो रहा नहीं हो रहा, ओपन दावे हो रहे नहीं हो रहे, कौन फैक्ट चेक कर रहे? इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट? जो बाइडेन। उससे पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रम्प। उन्हें मुंह खोले तो झूठ बोलता, उसकी उसकी हर स्पीच फैक्ट चेक करते थे, उन्हें क्या क्या बोल रहा, क्या क्या गलत बोल रहा, उसमें से 30 to 50% गलत ही रहता था। वो क्या प्रोपेगेंडा नहीं होगा? आज भी इलेक्शन है, आज भी नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्शंस में, इंडिया के रोड यूएसए से अच्छे बोलते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ नहीं हुआ? गलत तरीके से फैक्ट्स लगाना भी वो क्या है, प्रोपेगेंडा हो गया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डिड he asked the observation of full propaganda, association and education shall be guaranteed to all communities. Full religious liberty, liberty of belief, worship and observance, propaganda, association and education shall be guaranteed to all communities. आज अपने पास है नहीं है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, लिबर्टी ऑफ ऑब्जर्वेंस है, मींस लिबर्टी ऑफ फेथ है नहीं है, ऑब्जर्वेंस फेथ है, वही वर्ड थोड़े चेंज हो गए। और प्रोपेगेंडा, वी हैव नॉट यूज्ड द वर्ड प्रोपेगेंडा, लेकिन इट इज अनरिटन रूल, हर कोई इस्तेमाल करता ही करता। उसके बाद क्या है, एसोसिएशन है, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, और आर्टिकल नंबर 19 बेसिक बिलीफ्स है, व्हाट इज आर्टिकल 19 क्लॉज ए, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज ए, पढ़िए, टेक दिस आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज ए, open your article number 19. If I open this constitution, I'm opening on the screen also, screen पे open कर रहा हूँ इधर में। 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, आई हैव ओपन इन द स्क्रीन ऑल्सो, स्क्रीन पे देखो, protection of certain rights regarding the freedom of speech, so to freedom of speech and expression, to assemble peacefully without arms, to form association or groups। तो आज ये नहीं दिए, when we made our constitution we have given that, clear? Coming to the, so full religious liberty, association and education भी है नहीं अपने पास constitution में। What is article 21 capital A? Right to
right to education, the state shall provide free and compulsory education to all children of age group 6 to 14 groups in the manner of state may law determine. है नहीं अपने पास, it is a religious neutral law. It is a religious neutral law. Now coming back to it, this was the 7th point, guarantee to all communities. So we have given the right to education to all communities. चाहे it was what you can say, क्या है इंडिपेंडेंस के 60 साल के बाद दिए, लेकिन दिए नहीं दिए. It was good. देखिए वो टाइम पे क्या थे, जितने भी लोग थे ना, देवर विजनरी, वो अपने 50 साल के बाद की सोच के काम करते थे. आज क्या कर रहे हैं अपन, आज की भी नहीं सोच रहे, पहली बात अब की सोच रहे बस. तो वो टाइम पे जितने भी लोग थे, देवर द विजनरी पीपल. उसके बाद में क्या है, नो बिल और एनी रेजोल्यूशन, नो बिल और एनी no bill. So we have seen till what is the second point, what is the last point we have taken, full religious liberty of belief, worship, propaganda, observance, propaganda, association, education shall be guaranteed to all communities. लेकिन ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर नॉट इन दैट पोजीशन, अपने पास पैसा नहीं था. आफ्टर 60 years our private sector as well as public sector we became self sufficient. उसके बाद अपन कर सके, वो टाइम पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल था. उसके बाद में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 8th पॉइंट क्या है, because this cannot be accepted by anyone. No bill or resolution or any part of there shall be passed in any legislature or any elected body if 3/4 of the members of the community in that particular body oppose the bill or part on the ground that it would be injurious to the interest of the community or in any alternative. माने अगर for example आज क्या हुआ, no bill or any resolution part therefore shall be passed in any legislature or elected body if 3/4 of the members of the community in that particular body oppose such a bill, resolution or part therefore on the ground that it would be injurious to the interest of the community or the alternative. इसका मतलब क्या है, what happened there, क्या बताया इधर, क्या मतलब इसका, no bill or resolution in any part of that there should be passed in any legislature. माने अगर फॉर एग्जांपल आज मुसलमान कितने हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में कितने मुसलमान हैं, 23 एमपी है अलग अलग, तो उसका 3/4 कितना होता है 23 एमपी का. और फॉर एग्जांपल टेक इट एज 24 एमपी और 3/4 कितना है, 24/4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18. अगर 18 एमपी बोले कि भाई फॉर एग्जांपल CAA NRC ले लो, फॉर एन एग्जांपल CAA NRC was brought into the parliament and was passed, but it was alleged to be against the Muslim community, a particular community. अगर आज ये पॉइंट के हिसाब से अगर आज के उसमें 24 into 3/4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 18 एमपी अगर बोल दे कि भाई दिस law is going against the interest of my community, so that bill could not be brought in any elected legislature, चाहे वो पार्लियामेंट रहने दो चाहे वो लेजिस्लेचर रहने दो. वो लेजिस्लेचर का 3/4 पार्ट, अगर मुसलमान 4 है, अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 4 एमपीज और 4 एमएलए इन तेलंगाना असेंबली और इसमें से 3 एमपीज बोल दिए कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द कम्युनिटी, देन दैट बिल कैन नॉट बी passed in the parliament or any state legislative assembly. So this was not accepted by anyone in the community, because वो टाइम पे देखिए प्री पार्टीशन मुसलमानों की आबादी कितनी थी इंडिया में, it is said that 3/4 of the Muslim population went to Pakistan and 1/4 remained in India. 1/4 remained in India माने आज 1/4 रुक गई, तो 1/4 कितनी थी, आज 1/4 है तो कितनी पॉपुलेशन है
14% पॉपुलेशन है, आज 1/4 है तो 14% पॉपुलेशन है। अगर पार्टीशन नहीं होता था तो कितनी पॉपुलेशन रहती थी इंडिया की? 1/4 की 14% और 3 ऐड कर लो, एटलीस्ट मिनिमम कितना रहता था? भाई 1/4 की 14% है और 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 40% मुसलमान की पॉपुलेशन रहती थी। That's why I say कि पार्टीशन वाज अ मिस्टेक। पार्टीशन कभी राजी होना ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाने दो। इंडिया की पॉपुलेशन मिनिमम मुस्लिम पॉपुलेशन वुड हैव बीन एटलीस्ट मिनिमम 30% तो रहती थी, एंड majority population would have been with that proportion, but Muslim population would have been at least 30% था। तो बट ये क्या है, पूरा प्री पार्टीशन की बात कर रहे हैं, क्लियर? उसके बाद समझ में आया 8 पॉइंट, अंडरस्टूड दिस 8 पॉइंट, थोड़ा सा टेक्निकल था। उसके बाद 9 पॉइंट पढ़िए, 49 पॉइंट। Sindh should be separated from the Bombay Presidency. Now what is the Nehru said? Nehru said Sindh should be separated from the Bombay if the committee certifies that it was financially self sufficient। माने अगर सेपरेट करे बाद में, अगर सेपरेट करे बाद में, अगर नेहरू सेड कि yes it can be separated from the what you can say Bombay, but अगर वो financially self sufficient है तो ही। but what does the जिन्ना said? no if no but, पहले आप सेपरेट करो बस, उसके बाद में देख लेंगे। और उसके बाद में क्या बताया? रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट frontier province and Baluchistan on the same footing and the other provinces। जैसा आज देखिए, आज अगर जो तेलंगाना में आज रिफॉर्म्स लाए, यूपी में रिफॉर्म्स लाए, सेम रिफॉर्म्स किधर भी लाना है? नॉर्थ वेस्ट में। क्या आप उन्हें व्हाट डज इट से? इट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी कम्युनिटी, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी प्रोविंस। अगर आप रिफॉर्म्स ला रहे तो पूरे यूनिफॉर्मली रिफॉर्म्स हो, इधर ज्यादा ला रहे उधर कम ला रहे, दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट प्रोविजन? बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान उधर के जो ईरान का बॉर्डर है ना, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर का एक बलूचिस्तान का एरिया है। जैसा अब कश्मीर है, कश्मीर इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे बलूचिस्तान इज आल्सो द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान एंड ईरान। माने उधर भी क्या है, इट्स लाइक उधर के भी लोग उधर की गवर्नमेंट से खुश नहीं रहते। जैसा आज आप बोल सकते हैं क्या कश्मीर के लोग इंडियन गवर्नमेंट से खुश है, सेम वही सिचुएशन पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है? जैसा इंडियन गवर्नमेंट हमेशा एक फोर्सेस रखती, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उधर हमेशा फोर्सेस रखती, मिलिट्री उधर रहती। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़िए, provinces should be made in the constitution giving Muslims an adequate share along with other Indians in all the services of the state and local governing bodies due to regard to the requirement of efficiency। आज रिजर्वेशन दिए, आज तेलंगाना गवर्नमेंट कितना रिजर्वेशन देती बोल रही? 4% है तेलंगाना में। उन्हें कितने परसेंट दे दूंगा तेलंगाना? केसीआर 12%। बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ, बट क्या वो अपोजिशन हुआ उसमें? हम मैंने वादा करा नहीं करा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है नहीं है बस खत्म। आज देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो लीगली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इंडिया में आज के 3 से 4 रिफॉर्म जो आज आना है, आज क्या आना है रिफॉर्म्स इंडिया में। जब भी कोई स्पीकर बनता ना, चाहे यूनियन चाहे पार्लियामेंट का बने दो, चाहे स्टेट असेंबली का बने दो, ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी।
आज इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करता स्पीकर बनने मात्र, बिकॉज जब लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है वो तो जो स्पीकर आता मेजोरिटी पार्टी डिसाइड करती है उसको, पार्लियामेंट से ही डिसाइड करके लाते ना, जो हाउस है वो लोग मेजोरिटी डिसाइड करके उसको स्पीकर बनाते। अगर जो भी डिसीजन लेगा अपने क्या है बयान रहता मेजोरिटी पार्टी के से। आज के आज जो रिफॉर्म लाना है was the speaker should the moment a person becomes a speaker he should resign from the political party and he should become completely neutral। वो आज रिफॉर्म आना है, वो आज नहीं है। अपन स्पीकर का पोस्ट किधर से लिए, we have taken the speaker's post from which country, ब्रिटेन से लिए। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता, पोस्ट ले लिए प्रोसीजर नहीं लिए। ब्रिटेन में अगर कोई भी आदमी कोई भी एमपी अगर स्पीकर बना सबसे पहले उन्हें पार्टी का रेजिग्नेशन देता, सो दैट ही शुड बी न्यूट्रल। इंडिया में वैसा नहीं। और सेकंड चीज क्या है, इंडिया में अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना है तो सबसे पहले क्या रहना है, जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो है ना वो लीगली एनफोर्सेबल रहना। कि अगर जो इलेक्शन जो लिख दिए अगर वो 5 साल में नहीं आए तो लोग क्या कर सकते, कोर्ट में जाके पार्टी पे केस डाल सकते हैं। आज नहीं है वैसे, माने जो भी बोलते अगर आगे बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अगर आज के रिफॉर्म्स लाना है तो अकाउंटेबिलिटी लाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, द इलेक्शन मैनिफेस्टो whatever the party says it should be legally enforceable। ये हुआ नहीं हुआ चेक अनचेक। अगर वो कुछ भी नहीं कर सके वो लोग तो क्या करते, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये रिफॉर्म लाना जरूरी है, अदरवाइज इंडिया की पॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा करते रहते, इलेक्शन जीतते रहते। आज 2 करोड़ जॉब बोले, कहाँ है 2 करोड़ जॉब? आज क्या बोल दिए, अब फिर क्या बोले 2 करोड़ जॉब जब बोले, 1 महीना पहले क्या बोले 10 लाख जॉब देते वो, 18 महीने में 10 लाख जॉब। तो एग्जाम नेक्स्ट इलेक्शन को कितने दिन है, 18 महीने बराबर। तो 18 महीने में in 18 days, in 18 months there are elections, in 18 months they are going to build 10 lakh jobs। तो ये क्या होगा? So unless until if you want to bring reform into our election system, the election manifesto should become legally enforceable। इसमें आ जाओ 12 point पढ़ो। The constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslims culture and for the protection of promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institutions for their due share in the grants and aid given by the state and local self-governing bodies। माने मुस्लिम एजुकेशन अगर हो रहा, लैंग्वेज के लिए कुछ हो रहा या रिलीजन के लिए कुछ हो रहा, पर्सनल लॉज के लिए कुछ हो रहा, मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ हो रहा, तो क्या करना है, दे शुड बी ग्रांटिंग एड गिवन इन गवर्नमेंट से ग्रांटिंग एड्स आना पूरे मुस्लिम बॉडी के लिए। ठीक है, जो आज मदरसा को गवर्नमेंट पैसा देती based on if you qualify for the certain conditions, madrasas will get the grants in it। अगर minority institution है, minority institution को मुस्लिम गवर्नमेंट से पैसा आता नहीं आता, people will get, या तो पैसा नहीं आता concessions आते, but in any manner by this way or that way they will get the grants। so ये भी implement हुआ but not immediately। we have got sufficient safeguards in our constitution। next क्या है 13 point क्या है, no cabinet either central or provincial should be formed without their proportion at least 1/3 of the Muslim ministers। ये सबसे डेंजरस पॉइंट, no cabinet or either central or provincial should be formed without there being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers। क्या आज के तारीख में फॉर द फर्स्ट टाइम, आज की 2022 की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट में जुलाई के बाद एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। पार्लियामेंट में एक भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मुस्लिम नेम ही नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पॉइंट क्या बता रहा है इन्हें, व्हाट इज द पॉइंट गिवन हियर, नो कैबिनेट और इधर और सेंट्रल और प्रोविंशियल
should be formed without there being at least 1/3 Muslim ministers. माने अगर 100 मिनिस्टर्स को रखे तो कम से कम 20, आज का कैबिनेट कितना बन सकता, 60 मिनिस्टर बन सकते, आज की कैबिनेट में 60 मिनिस्टर बन सकते, तो 60 में 1/3 माने कितना होगा, 60 into 1/3 20. So as per the Jinnah's point, अगर 60 मिनिस्टर है तो कम से कम मुसलमान कितना रहना, अगर 100 मिनिस्टर है तो कम से कम मुसलमान कितना रहना उसमें 33. क्या ये पॉसिबल है? आज तो 0 हो गया, तो वो टाइम पे ही थॉट कि भाई एक टाइम आ सकता जो मुसलमानों का पॉपुलेशन, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एकदम 0 हो सकता गवर्नमेंट में. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड इतना होना ही होना है वो, ठीक है. बट इट वाज रिजेक्टेड, दिस पॉइंट वाज रिजेक्टेड. 14 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट क्या है? No change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the states contribution to India's federation. माने no change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the state contribution to India's federation. Now please remember ये point accept करे by when you see the constitution of India article number 368. When you see the constitution of India article number 368 amendment of the constitution, agar we have brought this, if the parliament is trying to change, if the parliament is trying to change the federal features of the constitution, अगर constitution amendment आ रहा जिसमें federal features अगर change कर रहे तो क्या रहे, ratification कितना होना है? When you see the when you do the plain reading of the constitution, article number 368, power to amend the constitution and procedure. Notwithstanding anything in the constitution, parliament in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, ये 3 चीजें याद रखिए. आर्टिकल नंबर 368 में एडिशन, वेरिएशन और रिपील any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down in the constitution. तो ये क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी है. ये क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी है. अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवाइडेड दैट such changes in the constitution, article number 54, 55, 73, all these related to federal features of the constitution. फेडरल माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. Chapter number 4. What is chapter number 4? DPSP. What is chapter number 5? Executive. What is chapter number 5 of part 6? Part 6 क्या है? What is part 6? The states. Part 9 क्या है? Part 11 क्या है? पंचायत. Part 11 क्या है? जाने दो. Part 11 क्या है? जल्दी बोलो. Part 11 क्या है? Relation between schedule. Part 11 क्या है? Relation between union and state or any list in the 7th schedule. What is 7th schedule? Union list, state list and concurrent list. Representation of states in the parliament और provisions है ना in this schedule. अगर आपको change करना है तो आपको special majority होना रहता. इसका पूरा the summary of this, if you are changing the federal features of the constitution, what are the federal features of the constitution? Article 54, 55, 73, 162, 241, 279 capital A, or chapter 4 of part 5, chapter 5 of part 6, chapter 1 of part 11, or list in the 7th schedule and representation of states in the parliament and provisions of this article. अगर change करना है तो क्या होना है आपको? जो स्टेट असेंबली है उसका रैटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है. अगर पार्लियामेंट ने पास कर दी, अगर स्टेट नहीं करी तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं रहता. ठीक है, समझ में आ रहा? सो विल कम टू दिस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट इतना याद रखिए, द नेहरू का जो 14 पॉइंट था, नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर. आज का सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है.
except the concurrence of the state contribution to Indian Federation. तो आज क्या बोल रहे फेडरलिज्म बोल, ठीक है. So these were the 14 points of जिन्ना, ठीक है. कैन यू समराइज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक मिनट में अगर समराइज करें तो जिन्ना, व्हाट इज द जिन्ना सेट? रेसिड्यूरी शुड बी पावर्स इन द प्रोविंसेस, यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी रहना. उसके बाद में सेंट्रल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में कितना डिमांड करा था? 1/3. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप शुड कंटिन्यू. उसके बाद में क्या है, सेपरेट टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई भी ऐसा चीज नहीं ला सकते विच गोज अगेंस्ट द कम्युनिटी इन द 4 रीजन. और क्या है, फुल लिबर्टी, बिलीफ, वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, प्रोपेगेंडा, एसोसिएशन एंड एजुकेशन विद गारंटीड. उसके बाद में no bill can be brought if it 1/3 of that community goes against 3/4. is 3/4. उसके बाद में क्या है, sin should be separated from Bombay presidency. नेहरू पॉइंट क्या बताया, it can be separated from the presidency but if the committee agrees that it is financially self-sufficient. उसके बाद में क्या है, Baluchistan has the same footing in the other provinces, should be made in the constitution giving Muslims an adequate share. उसके बाद में जो भी अगर मुस्लिम एजुकेशन है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, पर्सनल लॉस है, मुस्लिम का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, दे शैल बी ड्यू इन द ग्रांट्स इन एड बाय लोकल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ बॉडीज. उसके बाद में क्या है, नो कैबिनेट ईदर सेंट्रल और प्रोविंशियल शैल बी फॉर्म्ड विदाउट देयर बीइंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मुस्लिम मिनिस्टर्स. और लास्ट पॉइंट क्या बताया, नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट विद द कंकरेंस, माने एक्सेप्टेंस of the state's contribution of the Indian Federation. Clear? So these are the 14 points of the Jinnah's 14 points. ठीक है? Clear? So this document